कोई व्यक्ति जब तक जीवित रहता है वो किसी दल या किसी विचारधारा का हो सकता है, लेकिन स्वर्गवास के बाद वो संपूर्ण समाज का होता है, उसकी विरासत पे संपूर्ण समाज का हक होता है। तो ये कह देना जस्ट टू से दैट अम्बेडकराइट्स, एग्जैक्टली, ये बहुत ही, ये उस व्यक्ति की विरासत के साथ अपमान है, अन्याय है, उनकी आत्मा रोती होगी। आप just take a wild guess. Baba Saheb Ambedkar, before he converted to Buddhism, just take a wild guess on the number of practitioners of Buddhism in India in 1951. In 1951, the number of people who practiced Buddhism was 2,429. In 1961, the census said it is 32,50,000. A man single-handedly influenced the deepest psyche of our citizens. This whole usurping of the name Baba Saheb Ambedkar कि वो हमारे हैं, it's almost like Sardar Patel at one point of time कि वो किसके हैं, and the BJP willy-nilly took over Sardar Patel. Is that happening with Baba Saheb Ambedkar today? We have to realize बाबा साहेब अम्बेडकर की विरासत को लेकर के हमेशा, और ये मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि कोई व्यक्ति जब तक जीवित रहता है वो किसी दल या किसी विचारधारा का हो सकता है, लेकिन स्वर्गवास के बाद वो संपूर्ण समाज का होता है, उसकी विरासत पे संपूर्ण समाज का हक होता है। तो ये कह देना जस्ट टू से दैट अम्बेडकराइट्स, एग्जैक्टली, ये बहुत ही, ये उस व्यक्ति की विरासत के साथ अपमान है, अन्याय है, उनकी आत्मा रोती होगी। अगर ऐसा आप करते हैं कि नहीं, महाराष्ट्र के नवबौद्ध हैं, द न्यू बुद्धिस्ट ऑफ महाराष्ट्र हैव द कंप्लीट राइट ओवर द लेगेसी ऑफ बाबा साहेब अम्बेडकर, कैन देयर बी अ बिगर डिससर्विस टू द लेगेसी ऑफ अम्बेडकर? आई वांट टू आस्क यू, बाबा साहेब अम्बेडकर का व्यक्तित्व, फॉर बेसिक स्टैटिस्टिक्स, अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स, आई विल आस्क यू, आप just take a wild guess. Baba Saheb Ambedkar, before he converted to Buddhism, just take a wild guess on the number of practitioners of Buddhism in India in 1951. I think it was 1% or something. Close, a figure? Yeah. I mean, the population was कितनी 10 करोड़ थी तभी. I'm assuming 50 से 70 लाख के बीच में होंगे. I had no guess at all. And 1951 and 1961 too. Assume करिए धर्मांतरण के बाद कितने होंगे? कब हुआ था उनका धर्मांतरण? 56 में. 56-57 में. 56 में हुआ. 56 में. So 1951, and I read it in a book by Ashok Gopal. He categorically says in 1951 the number of people who practiced Buddhism was 2,429. Yes. 2400. In 1961 the census said it is 32,50,000. A man single-handedly influenced the deepest psyche of our citizens. 2400 से 32.5 लाख, स्मिता जी, ये मजाक नहीं है, ये माइंड बॉगलिंग है। Yeah, but I find it very hard to digest this number. अशोक गोपाल के द लाइफ एंड थॉट ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर के इंट्रोडक्शन में उन्होंने लिखा है। Yeah, but just a question for you. I'm sorry. नहीं, बिल्कुल। podcaster आ गया। Baba Saheb Ambedkar was a new Buddhist. Correct. So in terms of classical Buddhism, you know, the Eightfold Path or the Four Noble Truths, और वो सब उन्होंने follow नहीं किया है. Correct. So उनका Buddhism classical Buddhism तो है नहीं. So what are we gauging about the basis of this is the followers who joined Baba Saheb Ambedkar, or are we gauging this on the basis of something else? We have to be very That clear is a about very that. interesting question. Because Baba Saheb Ambedkar's Buddhism is not the classical Buddhism that people follow. Correct. People बोले तो Absolutely. Indians. Buddhists, yeah, there are Buddhists and then there are new Buddhists in Exactly. India. हाँ, because वो they are, जब सेंसस होगा तो वो अपने आप को हिंदू लिखेंगे, but practicing But can I Buddhists just हैं. take this moment to appreciate, first of all, thank you for bringing I mean, this. this is Really, thank you. Imagine Baba Saheb Ambedkar had converted to something else. तो ये नंबर चेंज वहाँ होता था. Interesting. और the question you said, देखिए बौद्ध ये धर्म ट्रबल के मेकर मत बनो तुम ये. दो स्कूल से, महायान, हीनयान. बाबा साहब अम्बेडकर नवयान लेके आते हैं. नवयान is that stream of Buddhism that you're talking about. And interestingly, you see, हमारी political vocabulary इतने skewed हैं, स्मिता जी. अम्बेडकर has referred to himself as a progressive conservative. Now, in the definition or the classical imagination of conservatism, do you see Ambedkar? Do you imagine even No. Ambedkar? Absolutely not. So the fact that he says I'm a progressive conservative, वो Edmund Burke को quote करके कहते हैं that only thing that can be rigid is a donkey. The only thing that can be fixated is a donkey. A man through intellectual pursuits has set to Wonderful. evolve. Brilliant. Point is this.
देखिए वो प्रोग्रेसिव कंजर्वेटिव, इस बात को कह के फिर मैं आपके प्रश्न पे आता हूँ, वो अपने आप को प्रोग्रेसिव कंजर्वेटिव इसलिए रेफर करते हैं बिकॉज ही हैड एन अनअबाइडिंग फेथ इन द प्रिंसिपल्स ऑफ बुद्धिज्म एंड ही इज इन फॉर कंजर्वेशन ऑफ दोज आइडियाज ऑफ बुद्धिज्म। वो जो भारतीय समाज की कल्पना कर रहे हैं जहाँ पे लिबर्टी हो, इक्वालिटी हो, फ्रेटर्निटी हो, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन वाला नहीं है, ये बौद्ध धर्म का समता, बंधुत्व और भाईचारे की वो बात कर रहे हैं। आप कंजर्वेटिव को हिंदुइज्म की दृष्टि से देखते हैं, आप कंजर्वेटिज्म को इस्लाम और या क्रिश्चियनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, बौद्ध धर्म की दृष्टि से जितने का बाबा साहेब अम्बेडकर थे, और इस संदर्भ में वो अपने आप को एक प्रोग्रेसिव कंजर्वेटिव कहते हैं। ये अपने आप में एक पुस्तक का मटेरियल है, पॉडकास्ट का मटेरियल, अम्बेडकर एज अ प्रोग्रेसिव कंजर्वेटिव। सो हाउ अ मैन is evolving through decades through his conversations with himself, his interaction with Professor John Dewey in Columbia University, multiple things. Another interesting thing which I would like to start off with to respond to your question, in 1946 बाबा साहेब के व्यक्तित्व को संकीर्ण किया गया, टू रिस्ट्रिक्ट हिज लेगेसी। क्या हम कैसे जानते हैं? हमारा जनरेशन या आपका जनरेशन उनको जानता है कि लीडर ऑफ द डिप्रेस्ड क्लासेस, वंचित समाज के नेता हैं, बस उनके इकोनॉमिस्ट के पर्सपेक्टिव को नहीं हम जानते हैं। इसका बड़ा कारण अशोक गोपाल जी अपने पुस्तक में लिखते हैं कि उनका मराठी साहित्य का अध्ययन नहीं हुआ है। अध्ययन कब शुरू हुआ? अध्ययन तब शुरू हुआ जब हमारे आपके जनरेशन ने उनको पढ़ना शुरू किया 1991 के बाद, जब उनको भारत रत्न प्राप्त होता है।